Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, so I hope I'm audible to all of you, loud and clear. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, so yesterday we were on these problems, right? We started with a type of average which we call it as weighted average. So let's quickly revisit what is weighted average. So weighted average is something when I say when you normally mix two different types of observations, two different types of observations you mix up, जैसे boys का average and then girls का average. So when you mix them up, so you combine them. Okay, so the average that you get is called as the weighted average. Okay, इसको हम बोलते हैं weighted average. इसका कुछ एवरेज रहेगा, इसका भी कुछ एवरेज रहेगा. सो जब दो एवरेज को मिक्स करेंगे द न्यू एवरेज इज कॉल्ड एज नथिंग बट weighted average. Or we can simply say we are mixing two different types of observations. Okay, same other type of mixture जब आप let's talk about um, let's say two mixtures, two liquids. When you mix them up you form a different mixture. Okay, जैसे कि milk and water अगर आप mix करते हो, okay, it forms the way they have been mixed is nothing but the weighted average. Okay, two different types of observations. So that is our weighted average. What was the formula for weighted average? So it says weighted average is equals to n1 x1 n2 x2 n3 x3 divided by n1 plus n2 plus n3 and so on. Okay, this is the weighted average. These are the averages of that observation, set of observations, and this is the weight or the number of observations. Okay, if I say five boys, there are five boys having an average marks of 60. So this will be your n1, this will be your x1. Okay, so x1, x2, x3 are nothing but the averages, okay, of different types of observations. So similarly, if we look at this question, particular question, यहाँ पे देखो number of students कितने हैं 24 and the average is 58. So definitely we can say this is n1, this is your x1. Similarly, this will be n2 and this is your x2. So find the average approximate, मतलब exact accurate answer नहीं आएगा. You will get something in decimal, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हम कब लगाते हैं जब एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड कर सकते. In that case we will have some approximate values. So all the 50 students, now this 50 students is irrespective of A या B, it is a mixture. Okay, so if we combine, what will be the weighted average? 24 into 58, okay, plus 26 into 60.5 whole divided by 24 plus 26. So what will be the value if you can figure out? Solve this and let me know the answer. Please try this question, everyone. I'm waiting for your answers.
Three. 59.3. Okay. Is it the same with every one of you? Yes, sir. Okay. एक टेक्निक देखना चाहोगे? If you have larger numbers, see the values of n1 and n2 are large, then rather than taking entire number, you take the ratio 24 or 26. If you take the ratio, it will be 12:13. So rather than taking 24 and 26, you can also use 12 and 13. You will get the same result. Okay, even if you take the ratio. Now, how many of you remember deviation? Deviation क्या होता है? Whenever there is something extra, that is observations का value and the average value, इसी difference को हम लोग deviation बोलते हैं ना? ये सुनो, कल हमने देखा था that actual value और average में जितना भी फर्क है, that is our deviation. So जितना deviation extra आता है whenever new members join, जितना contribute होता है. Do you remember this? Yes, sir. हाँ, तो देखो हम लोग वही टेक्निक अप्लाई करेंगे यहाँ पे. Now tell me, मैं conceptually इसी डेविएशन के कॉन्सेप्ट को लेके ही I will be solving the question. Tell me one thing. Your average has increased from 58 to 60.5. 58 to 60.5. And the number of people has also increased from 24 to 26. 24 से 26. Okay. Now जरा सोचो, अगर मैं नंबर ऑफ पीपल को बढ़ा दूं फ्रॉम 24 to 26, but I am not changing the average value, will my total average change? जो दो एक्स्ट्रा लोग हैं, एक्स्ट्रा पीपल, उनका भी एवरेज 58 होगा, तो टोटल 26 लोगों का एवरेज चेंज हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? No. नॉट पॉसिबल. मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर देता हूं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग. आई होप एवरीवन हैज रिटन डाउन दिस फॉर्मूला. देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा कंसेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस. n का वैल्यू, x का वैल्यू. इफ देयर आर 24 पीपल, एवरेज इज 58. जरा सोचो, अगर मैं दो और लोगों को जोड़ दूं, दैट बिकम्स 26, एंड दीज टू पीपल ऑल्सो हैज एन एवरेज ऑफ 58. Will my average be more than 58 or less than 58 or equals to 58? 24 लोगों का एवरेज 58 है. So less than 58. Less तो over. और will it remain same or will it change? It will change. It will be same, है ना? तो कॉमन सेंस ये कहता है एवरेज चेंज कब होता है? जब भी एक्स्ट्रा चीजें आती है. अगर ये 58 नहीं है, अगर ये सपोज 65 है, तो एक्स्ट्रा आ गए ना. ये दो लोग 7 + 7 14 एक्स्ट्रा लेके आए हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दो लोग 65 अगर लेके आते, सपोज इट इज 65, एवरेज इज 65, मतलब दो लोग जो है ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया है? 7 एक्स्ट्रा लेके आया है ईच, मतलब टोटल 14 एक्स्ट्रा लेके आया है. Now that 14 will be distributed among 26 of them.
Am I clear? Yes or no? Yes, sir. हाँ, अब सुनो, बहुत बढ़िया सा टेक्निक है। जरा सोचो, जब 24 लोग थे तो 58 एवरेज था। नाउ इट इज 26, एवरेज 60.5 हो गया है। कितना बढ़ गया है? कैन एनीवन टेल मी? 2.5. 2.5 बढ़ गया है। और ये 2.5 26 लोगों के एवरेज में बढ़ गया होगा, है ना? तो टोटल एक्स्ट्रा कितना लेके आया होगा? Yes or no? Am I right if I'm writing something like this? Is it correct? I'm not convinced that you have understood. अगर 24 लोग होते तो 58 एवरेज होता है, ठीक है? अगर आपने 26 और जोड़ दिए जिसका एवरेज कितना है? 60.5 है। इन 26 लोगों का एवरेज अगर 2 अगर सेम होता तो इन 50 लोगों का एवरेज चेंज होगा क्या? Will it change? No. तो ये 26 लोग कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं? 2.5 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। मतलब 26 इंटू 2.5 इज द एक्स्ट्रा वैल्यू। अब ये कितने लोगों में बटेगा? 50 लोगों में बटेगा। जो भी एक्स्ट्रा आता है क्या होता है? 50 लोगों में बटता है, टोटल में बटेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? नहीं तो मैं कुछ और एग्जांपल लेके बताऊंगा, बिकॉज अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? नॉट गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. Yes. अच्छा, मैं किस लेट मी ट्राई इट इन सम अदर वे। ओके, जरा सोचो, 5 लोग हैं, ठीक है? 5 लोग हैं जिनके पास एवरेज में देयर आर ओनली 10 रुपीज, ठीक है? एवरेज में 10 रुपए है, मतलब सबके पास 10 रुपए जैसा है, मतलब टोटल 50 रुपए होंगे सबके पास मिला के। मैंने 5 और लोगों को बुलाया जिसके पास 11 रुपए है, ठीक है? 5 और लोगों को बुलाया जिनके पास 11 रुपए है। तो ये पहले के ग्रुप से कितना रुपए ज्यादा है? हर एक के पास 1 रुपया ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो 5 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये क्या है? 11 एवरेज है, मतलब हर एक लोगों के पास 11 है। पुराने नंबर से 1 ज्यादा है सबके पास, मतलब कुल मिला के टोटल 5 ज्यादा है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो अभी ये जो एक्स्ट्रा है ये कितने लोगों में बटेगा? 5. 10 लोगों में बटेगा, क्योंकि मिक्स कर दिया ना अभी। Have you understood this one? Yes or no? Yes, sir. Others, I'm not getting that response, so I'm not convinced कि आप लोग Yes, sir. Where is Srikant? Is he present today? Anil? Yes, sir. I'm there. Yes, sir. Shrikant Okay. here. Mudassir, you are also present but not responding. Mayur, Kaveri, Sonali, all the Sonali, not responding at all. देखो, एक चीज होता है that if you do not communicate, सामने वालों को समझ में नहीं आएगा that whether you have understood or not. Okay, so we need to have two-way communication. It's not like कि just one-way communication हो रहा है. Okay,
So I'm not here to, do the radio wala type broadcast. Please do ask questions if you don't understand. एक method समझ में नहीं आया तो I will explain another method. क्योंकि एवरेज एक ऐसा चैप्टर है, you will definitely 100% लिख लो, you will get a question from average. This is guaranteed. 100%. एक ना एक तो क्वेश्चंस आ ही जाएगा. Be it in the form of average, pure average, be it in the form of age related questions, be it in the form of mixtures and allegations. कोई भी फॉर्म में आपको मिल ही जाएगा आंसर. ओके, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, 24-26 और लोग जुड़ गए हैं. जो 60.5 हर एक 60.5 लेके आया है, तो हर एक ने ना 2.5 एक्स्ट्रा लेके आया है. और ये कितने लोगों ने लाया है? टोटल 26 लोगों ने लाया है. अब ये कितने लोगों में बटेगा? 50 लोगों में बटेगा. Sir, I have one question. यस प्लीज. सर, हमने फार्मूला मेथड यूज किए हैं, इससे हाँ. 59.3 आ रहे हैं, फिर एक ही यूज कर रहे हैं. ये ऑल्टरनेटिव मेथड है. दिस इज कॉन्सेप्चुअल मेथड. मतलब Okay. आप बिना फॉर्मूले के डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के बता पाओगे ओके. आंसर क्या है. हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? लॉजिकली, कॉमन सेंस, In less time solve more questions. एग्जैक्टली. अब देखो फॉर्मूला कितना बड़ा है और हमारा कैलकुलेशन इतना सही है. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, If we solve by using formula, we need calculator or something because the number is. यस. हाँ. और हमारे पास we will have only few seconds to answer. That is why we are going. देखो इतना टफ क्वेश्चंस भी नहीं आएगा. It will be easy and it should be solvable within seconds. तो आपको वो ट्रिक को गैस करना पड़ेगा, वो ट्रिक को समझना पड़ेगा. That हाँ ऐसे क्वेश्चन आया, फटाक से मैंने ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, हो गया आंसर. सो दिस इज व्हाट. देखो अगर मैं ऐसे सॉल्व करने के लिए दूं, क्लास 10 के बच्चे भी सॉल्व कर देंगे, स्कूल के बच्चे भी सॉल्व कर देंगे. आप में क्या डिफरेंस है? दैट डिफरेंशिएट्स you between you and a school student. You are smart now. Getting my point? तो ये चीज है आपका सोचने का नजरिया. in the day one also I told you, aptitude is not about solving problems in a traditional way. It's all about how you think. आप किस तरीके से सोचते हैं. उनको क्या पड़ी है that they will ask you these questions when you should become a programmer or developer or a tester. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में थोड़ी ना पूछेंगे कि हाउ द सेक्शन ए का क्लास इतना है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू जज यू. दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर यू आउट कि आप सोचते कैसे हैं, आप चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. राइट. There will be tens of situations where you will be developing the programs, you will be developing the softwares, you will be deploying the softwares, you will be doing client service, you will be testing the softwares. ये सब सोचने का जो तरीका है, क्या आप सोच पाओगे या नहीं? This is the way to test. इसीलिए ये सब सिखाया जाता है. Understood? That's why I told you it is a skill. Okay, anyways, can anyone help me solving this part only? 2.5 into 26 divided by 50. I am thinking that 25, ये 25 की तरह दिखता है. Only difference is there is a point. Huh? 14 is coming. Are you getting 14 or 13? 14. हाँ, but you will get 1.3 अगर आप solve करते हो तो, if I'm not wrong. Yes, Are you sir. getting 1.3? Yes, sir. हाँ, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा है जो सब में कितने लोगों में बटा है? 50 लोगों में बटा है. 50 लोगों को क्या मिल गया? अभी एक्स्ट्रा 1.3 मिल गया. मतलब
पुराने एवरेज से 1.3 ज्यादा. आंसर इज 59.3. डू यू एग्री नाउ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपको क्या करना है, जो भी इंक्रीमेंट है, चेंज 58 से क्या बन गया 60.5. सो द डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द न्यू मेंबर्स, उसी को सब में बांट दो. सो दैट विल बी द चेंज इन द एवरेज. ओके, सो ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. A plus 2 trees yield an average of 60 mangoes. Okay. So this will become your N1. This is your average लिखा है देखो. So this is your X1. This is your N2. This is your X2. And अच्छा, this time we have 3. N3 भी है देखो. Yield an average of 180 mangoes. So how will you simplify this now? पहले कितना था? A plus 2. कितना mangoes है? 60. You can also solve by formula. Okay, there is always a way to solve using formula. अगर A है तो ये 120 है एवरेज. Now A minus 2 को भी जोड़ दो तो it becomes they have 180 mangoes. Now you tell me, how will you simplify this? अगर total average per year is 100, सबको मिला दूं तो 100 एवरेज है. How will you find the value of A? So if you are not convinced with this method, use the weighted average formula. कैसे यूज करेंगे? All these are N, all these are X. Tell me. The average yield is 100. Left hand side value is given 100. So N1 X1 plus N2 X2. B option 4. 4. Okay. Everyone, are you getting 4? Is it 4? Yes, sir. Okay. Others, are you getting 4? You can also drop your answers in the chat box, okay, if you're not comfortable answering the question. I think plus 2 minus 2 can be cancelled. यहाँ पे देखो 3A है total. So 3A, if you change the side, it will become 300A. तो यहाँ पे देखो 60A, 120A, 180A. So that gives us 360A minus. Will it be minus or plus? Okay. 120 here and यहाँ से minus 360. So that gives us minus 240. So 60A would be 240. A comes out to be 4. Please verify everyone. A comes out to be 4. Yes, sir. Is it okay everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, नाउ इस मेथड से कैसे सॉल्व करें? दैट शॉर्टकट मेथड. देखो 60 से ये कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है 120, राइट? तो 60 एक्स्ट्रा, ये कितने लोग लेके आए हैं? A लोग लेके आए हैं. अब 60 से ये कितना ज्यादा है? 120.
अब ये कितने लोग लेके आए हैं? 120 इंटू a माइनस 2. ओके, अब ये कितने लोगों में बटेगा? इतने लोगों में. ठीक है, इतने लोगों में बटेगा, which is divided by 3a. क्यों? इसका ऐड करोगे, that is 3a, so that is 100. Now this large calculation has reduced to this one. आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो. ओके, दिस विल बिकम 180a माइनस 240. ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ही गिनूंगा. कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है. कितने लोग एक्स्ट्रा लेके आए हैं? इतने लोग. दैट्स वाई 60a. यहां से ये कितना ज्यादा है? 120 ज्यादा है. और ये कितने लोग लेके आए हैं? a माइनस 2. तो these are the extra value which will be distributed among all these 3a persons. and अच्छा, यहाँ पे 100 नहीं होगा, it will be 60 plus the extra value. Okay, this your answer will be something like this. 60 से all total average कितना आया है? 100. तो 60 से 100 मतलब कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है. So this will be your value. Okay, average कितना बढ़ गया है? 40 बढ़ गया ना. So this is your extra value. Okay, so don't worry, you will need practice on this. We will try to solve with various other examples. So this is all about the average. Okay, now average ka we will see the applications in a new chapter. So we are done with this. Any question, any query on this chapter? Anyone? Any query on this? Okay, no reply. Are you able to see the screen, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we have a new topic, the application of average, mixtures and alligation. This is a very intense one. अगर आपको average समझ में आया है तो this will be very easy. Okay, what is mixtures? Something when you mix two observations, yeah, two types. For example, when you mix two things, type 1 plus type 2, any it can be anything. Milk plus water, rice and dal. Then we have let's say some tea plus let's say Kerala tea. So the taste would be different, you know. Then you mix let's say any other mixture that you can name. Let's say alcohol plus water, it's a mixture. Then we mix basmati plus Indrayani, right? These are two different types of rice. इनका टेस्ट कैसे आएगा? Somewhere in between, yes or no? Understood? All these are nothing but mixtures. So क्या हो रहा है? Let me start with a basic example. Okay, the basic example is, let's talk about I want someone to volunteer. Who can volunteer? Let me select anyone. Okay, Mudassir, are you there? Mr. Mudassir? Yes, sir. Really? Okay. So
let's say Mr. Mudassir has one, uh, has one kirana store. Okay, Mudassir Company Limited, okay, has a kirana store. Now kirana store, he sells rice. Okay, rice is a product. Rice is an article that he sells in his shop. So he has two different types of rice. दो टाइप के राइस हैं, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2. नाउ टाइप 1 टाइप 2 क्या है? जैसे मैंने बोला, जैसे इंद्रायणी और बासमती होता है, ठीक है. नाउ ही इज सेलिंग टू टाइप्स ऑफ राइस. एक राइस का प्राइस है रुपीज, लेट्स से 30 पर केजी. ओके, एक राइस है जो 30 रुपए किलो बिकता है. दूसरा टाइप का राइस है विच इज लेट्स से 60 रुपीज पर केजी. ओके, नाउ कस्टमर कम्स इन एंड कस्टमर सेज कि ये 30 रुपए वाला ना बहुत चीप क्वालिटी का है, मजा नहीं आ रहा है, मैंने टेस्ट करके देखा, इट्स नॉट गुड. ओके, नाउ मुदासिर सेज ओके नो प्रॉब्लम, वी हैव वन मोर टाइप ऑफ राइस, 60 रुपए वाला ले लो, अच्छे क्वालिटी का है. कस्टमर सेज नहीं बहुत महंगा है. अब ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं. फिर 30 रुपए वाला चावल मैंने खरीद के रखा है, मुदासिर ने खरीद के रखा है इसको बेचने के लिए, बट ही इज नॉट एबल टू सेल बिकॉज कस्टमर्स के डिमांड ही अलग अलग है. व्हाट ही थॉट इज ओके फाइन, 30 रुपए वाला लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, टेस्ट अच्छा नहीं है. 60 रुपए वाला भी अच्छा नहीं है, बिकॉज अच्छा है बट महंगा है, पीपल आर नॉट कन्विंस्ड टू बाय दिस. ओके, तो व्हाट्स द प्लान? क्या क्या आइडिया है? इन दोनों को बेचना कैसे है? हाउ विल यू सेल दिस वन? कर देंगे. यस, वेरी गुड, मिक्स करके बेचेंगे. नाउ अब मैंने जैसे तैसे मिक्स कर दिया और मेरे मन के हिसाब से मैंने प्राइस लगा दिया. मैंने बोला कि अच्छा चलो, कस्टमर को परेशान ज्यादा नहीं करेंगे, कस्टमर को बोलेंगे 40 रुपए किलो है मिक्स करने के बाद. ओके, कस्टमर सेज ओके फाइन, टेस्ट भी थोड़ा बहुत बासमती जैसा आ रहा है, तो प्राइस भी ठीक ठाक है, हम लोग खरीद लेंगे. अब सोचो 40 रुपए वाला चावल बनाने के लिए क्या यहाँ से मैं अपनी मर्जी से कुछ भी क्वांटिटी लेके मिक्स कर दूं, चलेगा? द आंसर इज नो. हाँ, क्योंकि हिसाब में चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो देखना पड़ेगा ना कि लॉस में है कि प्रॉफिट में है ना. जैसे तैसे मन किया मिक्स कर दिया, नहीं चलेगा. सो मुदासिर थॉट अपॉन कि व्हेन आई एम मिक्सिंग दिस टू, दैट मीन्स मुझे इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा. जो एवरेज प्राइस है वो 40 रुपए है. आर यू गेटिंग दिस? सो व्हेनेवर वी गेट अ मिक्सचर, दिस मिक्सचर का वैल्यू इज नथिंग बट एवरेज ही है. और ये कौन सा टाइप का एवरेज है? व्हेन यू मिक्स टू डिफरेंट टाइप्स और ऑब्जर्वेशंस, इसको बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज. सो मिक्सचर का दूसरा नाम वेटेड एवरेज. ओके, एम आई क्लियर ऑन दिस एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ अब सोचते हैं कि इसको डिवाइस कैसे करना है. ओके, सो एक बढ़िया सा प्लान है. आई थॉट कि वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लग जाए. लेट्स से इसका ना Q1 क्वांटिटी, Q1 केजी में यहाँ से राइस ले लूंगा और यहाँ से Q2 क्वांटिटी, Q2 केजी में यहाँ से क्वांटिटी में राइस ले लूंगा. सो दिस विल बिकम योर X1, दिस इज योर X2, दिस इज योर N1, दिस इज योर N2. So weighted average का फॉर्मूला क्या है? weighted average would be N1 X1 N2 X2.
अब मुझे बताओ N1 की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आई विल बी राइटिंग Q1. X1 is 30. What will be the value of Q2? Sorry, what's the average for Q2? It is 60. What shall I write? Whole divided by is Q1 plus Q2, है ना? And this weighted average equals what? दोनों को मिक्स जब करूंगा तो मुझे एवरेज कितना मिलेगा? 40 रुपए. So if you simplify this ratio, you will get how much? Can anyone tell me? The ratio would be 2:1. बस इसको simplify करना है. Okay. So this is the formula for weighted average. I'm using weighted average. क्यों weighted average? क्योंकि मैं दो अलग अलग चीजों को मिक्स करके एक तीसरा वैरायटी निकाल रहा हूँ. That is I'm mixing. Whenever we have got mixture, it means average. Which type of average? Weighted average always. Now from now onwards, whenever I ask you mixture का दूसरा नाम, let's see. जब मैंने क्वांटिटी 30 रुपए वाला सॉरी 30 रुपए वाला प्राइस एंड 60 वाला प्राइस, व्हेन आई मिक्स देम आई गॉट 40 रुपए. ओके, सो इन व्हाट रेशियो डिड आई मिक्स? 2:1. सो द क्वांटिटी दैट आई टेक इज 2 किलो 1 किलो. ठीक है, सो आई गेट एन एवरेज ऑफ 40 रुपीज. नाउ टेल मी, अगर मैं ये 2 किलो और 1 किलो मिक्स करूं तो मुझे क्वांटिटी कितना मिलेगा? द क्वांटिटी दैट आई गेट इज ओनली 3 kg. करेक्ट? अब मुझे बताओ, उसके पास सिर्फ 2 किलो और 1 किलो चावल तो नहीं होंगे, है ना? चावल 50 किलो 100 किलो ऐसे टाइप के चावल होंगे ऐसे क्वांटिटी में. व्हाट शैल ही डू नाउ? तो 2 और 1 हमेशा क्या 2 किलो 1 किलो 2 किलो 1 किलो ऐसे मिक्स करते रहेंगे? नॉट नेसेसरी एट ऑल. He used proportional, sir. Yes, the proportion has to be same. तो जब भी वो मिक्स करेगा वो 2:1 के रेशियो में ही आना चाहिए. That means अगर इसमें 20 किलो लिया तो इधर कितना लेना पड़ेगा? 10. Tell me. 10. Yes. जब भी आपका प्रोपोर्शन सेम रहेगा आपका एवरेज प्राइस विल रिमेन सेम. ठीक है, इसमें भी 40, इसमें भी 40. दैट मीन्स एक लेट्स से यहाँ से मैंने जी लेता तो यहाँ से मुझे 15 kg लेना पड़ेगा. सो दैट माई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. gone to McDonald's या से KFC या अमूल का आइसक्रीम, लेट अस टेक अमूल का आइसक्रीम. सो अमूल का आइसक्रीम कहीं पर भी खाओ, इट टेस्ट एग्जैक्टली द सेम. ऐसे कैसे बनाते हैं ये लोग? जो रेसिपी है ना वो हर जगह सेम प्रोपोर्शन में आता है. लेट्स से दे आर मिक्सिंग मिल्क के साथ में कुछ वाटर है और कुछ अदर्स लेट्स से शुगर दे आर मिक्सिंग. तो ये जो प्रोपोर्शन है चाहे वो 100 लेट्स से 100 क्विंटल्स बनाए आइसक्रीम या 10 क्विंटल बनाए, ओके, सेम प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे ना तो द टेस्ट विल ऑलवेज बी द सेम. ठीक है, सो दिस इज द रीजन.
सो दैट मीन्स वी से चाहे मैं 10 लोगों का बनाऊं या 100 लोगों का बनाऊं, अगर मुझे सेम टेस्ट चाहिए मीन्स आई शुड हैव द सेम मिक्सचर. अगर सेम मिक्सचर है दैट मीन्स द प्रोपोर्शन इन विच द क्वांटिटी द आर्टिकल्स वेर मिक्स्ड आर सेम. तो ये रीजन है. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो व्हेनेवर दे आर आस्किंग कि मिक्सचर का कितना होगा, ठीक है, सो दैट मीन्स यू विल हैव टू यूज वेटेड एवरेज. इफ समबडी सेज ठीक है चलो मैं मान लिया, अनदर एग्जांपल, इफ समबडी आस्क ठीक है लेट मी से कि ओके व्हाट इफ आई मिक्स 5 kg ऑफ ₹30 वाला टाइप and 2 kg, let me write not 2 kg, कुछ और ले लेते हैं, 5 kg and let's say 3 kg of ₹40, no ₹61. हाँ. So what will be the mixture cost? मिक्सचर का कॉस्ट कितना होगा जरा सोचो. कस्टमर आता है और बोलता है ओके फाइन, you give me 5 kg of the first type and 3 kg of the second type. मीन्स कस्टमर 8 किलो डिमांड कर रहा है ना. अब मुद्दा सिर्फ सोच में पड़ गए, मैंने तो पहले 2:1 रेशियो में मिक्स किया था जिसका प्राइस 40 रुपये आ गया, अब मैं ये कैसे फाइंड करूं? नो प्रॉब्लम एट ऑल. दिस रेशियो, द रेशियो इन विच दे शुड बी मिक्स्ड इज 5:3. करेक्ट. अगर रेशियो चेंज होता है तो वो 40 रुपए नहीं आएगा अभी, है ना. रेशियो चेंज हो चुका है, नाउ इट इज नॉट 40. अब क्या करें भाई? ओके नो प्रॉब्लम, वी हैव आवर टेक्निक. मिक्सचर का वैल्यू फाइंड करना है, तो मिक्सचर का वैल्यू फाइंड करना है तो मिक्सचर का दूसरा नाम इज, टेल मी, वेटेड एवरेज. तो जब भी मिक्सचर को फाइंड करने की बात आती है, use the formula for weighted average. ठीक है. So weighted average का formula क्या रहेगा? 5 into 30 plus 3 into 16 divided by बोलो 5 plus 3. Perfect. Anil, tell me the result for this. Anil is not responding. He is not attending, regularly. Anil, where are you? Yes, sir. Tell me the answer. I'm waiting for your answer. $172.5. 172.5. No. 41 point इतना ज्यादा क्यों आएगा? 172.5 क्या? 41.22. 41.22 ऐसा आ रहा है. देखो, Yes sir. अगर आप 30 रुपए वाला और 60 रुपए वाला मिक्स करोगे ना, हाँ सर वही आ रहा है 41 पॉइंट. तो दोनों के बीच में कहीं तो आंसर आएगा. ठीक है. अब मैं 41.2 is nothing but that this value will be my cost of the mixture. मतलब मिक्सचर को मिक्सचर बनाने का जो कॉस्टिंग है 41.2, आप इसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ के बेचो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. नाउ लुक एट दिस. जब भी मेरा प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है तब मिक्सचर का वैल्यू चेंजेस. बाय द वे मैं उसी टेक्निक से भी फाइंड कर सकता हूँ जब भी वेटेड एवरेज की बात आती है. 30 has become 60, so the change is of 30. ये कितने लोग लेके आए होंगे एक्स्ट्रा? 3 लोग. 30 into 3 90. अब ये कितने लोगों में बटेगा? 8 लोगों में बटेगा. 5 plus 3 8. So 90 by 8. What is 90 by 8 by the way? इलेवन पॉइंट 11 point 25. 25 नहीं आएगा. एक बार फिर से चेक करो. 11 point 11.22 आएगा.
11.22 आएगा, इज इट? नहीं सर, Yes, sir. 5 आएगा ना। 11 टाइम्स 88 है, क्योंकि 8 to the 16, 11.25. हाँ, 4 plus 11.25। 10, 8 5 the 40. तो यहाँ पे भी 25 आना चाहिए। योर न्यू एवरेज वुड बी 30 पॉइंट, पुराने एवरेज से इतना ज्यादा है 11.25, सो आंसर इज 41.25। तो यहाँ पे फिर से चेक करो, कुछ गलती तो नहीं हो गया? 22 जो आ रहा है, विल इट बी 25? ये वाला पोर्शन, Yes, sir. ये 5 into 30, 150 हो गया। Yes sir, 41.25. हाँ, देखो ये फाइंड करने का तरीका और ये फाइंड करने का तरीका, पुराने नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। ये कितने लोग एक्स्ट्रा लेके आए हैं? 3 लोग, मतलब कुल मिला के 90 लोग, 90 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। अब ये सब में बटेगा, 8 लोगों में बटेगा, ठीक है? सो व्हाट यू हैव लर्न, whenever the ratio changes, the average will also change, है ना? इसीलिए हर एक लोगों का चाय बनाने का तरीका अलग होता है। कोई 3 cups of milk में they add 2 cups of milk. Somebody says, okay, I like 50-50. I like 1 cup of milk and 1 cup of water. So the taste will be different, है ना? So all these are nothing but the concept of mixtures. Okay. Now, step number 2. Let me just add one more slide here. Okay. Okay. Now we are continuing with the same example. Okay. So we are still with the Kirana store, Mr. Mudassir ka Kirana store, Mudassir Company Limited. Okay, it's a big company. By the way, do you understand between limited and private limited? No, sir. Private limited is nothing but there are a number of owners, limited owners. Public limited doesn't have a limit. Just limited लिखते हैं तो it's public limited. Just like shares, शेयर बाजार में उसका शेयर मिलता है. You can also become the owner of the company. जैसे TCS का एक शेयर खरीद लो, you can also become the owner of the company. So you are also an owner of the company. Okay. So but for private limited you cannot buy the shares. वो limited हो जाता है. Sorry, वो private हो जाता है. That you cannot own them. Okay. Anyways, coming back to the same. उसके पास 30 रुपए वाला चावल and ₹60 वाला चावल. Now Mudassir knows the technique. Customer आता है, I will mix the way I like and I will again figure out कि उसका mixture का value कितना आएगा. Okay. Now look at this. What if the customer demands are varying? Customer 1 demands, Mudassir bhai, I have only 35 rupees. What to do now? So he will make 35 rupees wala instantly. ठीक है? Though he knows the formula. Okay, this is weighted average. मुझे कितने कितने रेशियो में मिक्स करना है वो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा from the same formula. So how will you figure out? 35 equals Q1 into 30 plus Q2 into 60 divided by Q1 plus Q2. So he will figure out कि ऐसा find out कर सकते हैं. Now customer 2 आता है, no, I am rich, I can pay till 50 rupees. मैं 50 रुपए दे सकता हूँ. So he will again formulate something like this. Okay, fine. Q1 30 plus Q2 60 divided by Q1 plus Q2.
ओके, नाउ ही विल गेट न्यू Q1 Q2, मतलब नया रेशियो आ जाएगा. प्रॉब्लम इज every time will I have to solve like this? The answer is not necessary. तो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर का डिमांड, ही कैन चेंज द मिक्सचर immediately, and that rule, that shortcut technique is called as rule of alligation. अब देखो, पहला कस्टमर का डिमांड क्या है, 35 रुपए वाला मिक्सचर बनाओ. तो इन ऑर्डर टू फिगर आउट ही विल हैव टू सॉल्व दिस वन. सो अभी ये सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. द फर्स्ट टाइप यू राइट हियर, द सेकंड टाइप यू राइट हियर, and the mixture value you write here. This is always the mixture. Mixture का दूसरा नाम Weighted average. weighted average. Yes, always remember. जब भी कोई पूछता है कि मिक्सचर का वैल्यू कितना होगा, तो you find out using weighted average. 60 and 35, 30 and 35. देखो, दो चीजों को अगर आप मिक्स करते हो, जो मिक्सचर आएगा वो हमेशा हमेशा दोनों के बीच में कहीं तो लाई करेगा. सो दिस मिक्सचर वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 60, है ना. कॉमन सेंस वही कहता है ना. दूध और पानी को मिक्स करोगे तो वो ना तो प्योर दूध रहेगा ना ही प्योर पानी रहेगा, समवेयर इन बिटवीन, है ना. सो यही चीज हो रहा है. सो हाउ टू फिगर आउट, राइट द डिफरेंस. किसका डिफरेंस, ऐसे 60 and 35. Can anyone tell me what is the difference between 60 and 35? 30. Yes. Tell me the same difference in the other side. Difference is 5. 5. हमें डिफरेंस से मतलब है, हाँ, चाहे आप 30 minus 35 करो या 35 minus 30 करो, चॉइस इज योर्स. मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस से मतलब है. तो व्हाट इज माय रेशियो नाउ, इन दोनों का रेशियो लेना है 5:1. ठीक है. मतलब अगर कस्टमर बोलता है कि ओके मुदस्सिर भाई मुझे 35 रुपए वाला चावल बना के दो, तो ही विल क्विकली यूज दिस टेक्निक एंड ही विल ऐड 5 kg फ्रॉम द फर्स्ट टाइप एंड 1 kg फ्रॉम द सेकेंड टाइप. ओके, तो तुरंत रेशियो मिल गया. देखो, मुझे इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है. व्हाट माय पॉइंट एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाउ क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द रेशियो फॉर द सेकंड कस्टमर. सो व्हाट विल बी द रेशियो, Q1 Q2 का रेशियो कितना आएगा? 1:2, sir. 1:2. Are you everyone getting 1:2? Yes. Yes, sir. So 10 और 20 आएगा. The answer is 1:2. The meaning is, इसका क्या मतलब है, 1 किलो पहले वाला 1 किलो लिया तो दूसरे वाला 2 किलो लेना पड़ेगा. Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कुल मिला के 3 किलो का मिक्सचर बनेगा और उस 3 किलो के मिक्सचर में से 1 किलो कस्टमर को दे देंगे. हो गया 50 रुपए का 50 रुपए वाला 1 किलो, है ना. नाउ टेल मी, क्विकली सॉल्व इट फॉर द थर्ड वन एंड टेल मी. सर 1:1 आएगा उसका रेशियो. 1:1 आएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली मीट पॉइंट पे है ना. सो दिस विल बी 15, दिस विल आल्सो बी 15. मतलब 45 रुपए वाला बनाना है तो एग्जैक्टली सेम रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, सेम वॉल्यूम में. सो दैट इज 1:1. क्लियर सो फार एवरीवन? Yes, sir. So do you observe something? अगर आपका जो एवरेज है यानी मिक्सचर का वैल्यू दूसरे
द लोअर वन, लोअर वैल्यू के पास में है, देखो 35 जो है वो 30 के पास में है, मतलब लोअर टाइप वाला, ओके, इंफीरियर लोअर क्वालिटी वाला ज्यादा मिक्स किया गया है। अगर आपका मिक्सचर का वैल्यू सुपेरियर क्वालिटी यानी अच्छे क्वालिटी के पास में आता है, तो मतलब अच्छे क्वालिटी वाला ज्यादा मिक्स किया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो अगर आप चाय बनाते वक्त दूध और पानी में अगर दूध ज्यादा मिलाओगे तो आपका चाय अच्छी बनेगी, है ना। तो अगर आप पानी का क्वांटिटी ज्यादा लोगे तो आपका चाय बहुत पतला बनेगा, है ना, बिकॉज इट विल फील लाइक मोर वाटर इज देयर इन द मिक्सचर। सो ये सिंपल एनालिसिस है। ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, अभी देखो इसका डिसएडवांटेज। ये मेथड कब हम यूज नहीं कर सकते? देयर इज ओनली वन व्हेन mixture value is not given. We cannot use this rule, ठीक है। Another example, ये याद रखना, this is the disadvantage. Second, another example, let's say. Okay, let's talk about another example. Let's say I traveled from point A to B at 35 kilometer per hour. Okay, and I travel from B to C at, let's say, 70 kilometer per hour. 70 kilometer per hour. Now, if I say ये जो 35 और 70 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल किया है, ये पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड जो है दैट कम्स आउट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर। पूरे जर्नी का एवरेज देखो, मेरे पूरे जर्नी जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ ए टू बी, बी टू सी। तो कैन आई अप्लाई रूल ऑफ एलिगेशन इन दिस सिचुएशन? कैन एनीवन टेल मी? Yes, sir. यस, क्यों? एवरेज वैल्यू दिया हुआ है ना। तो मैं क्या करूंगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटे एंड 70 किलोमीटर पर आवर, व्हेन यू मिक्स देम योर एंटायर जर्नी इज नथिंग बट as good as 50 kilometer per hour. So if I simplify this, if I apply rule of alligation, it gives me difference यहाँ पे कितना आ गया, 15, 4. difference यहाँ पे 20. So what is the ratio? 4:3. 4:3. अब मुझे बताओ, अगर मैं चावल के रेट यानी चावल के प्राइस को मिक्स करता हूं तो मुझे चावल की क्वांटिटी मिलता है। अगर मैं स्पीड का एलिगेशन लूं तो मुझे ये क्या मिलेगा? ये 4:3 क्या है? कैसे पहचानेंगे? क्या देगा ये रेशियो? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे रेशियो जो है क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है हियर। ओके, तो यहाँ पे रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कुछ चीज मिक्स कर रहे हो ना, उसका डिनोमिनेटर, उसका यूनिट को ध्यान दो। व्हाट इज द यूनिट? किलोमीटर पर आवर। ऑलवेज लुक एट द यूनिट। यूनिट में जो डिनोमिनेटर में है किलोमीटर पर आवर, मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है? आवर्स। अब मुझे बताओ, आवर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को डिफाइन करता है आवर्स? टाइम। टाइम, यस। जब भी कोई बोलता है कि इतने आवर्स, वो क्या बोल रहा है? टाइम बता रहा है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, एलिगेशन जब लोगे, लुक एट द डिनोमिनेटर ऑफ द यूनिट।
वो यूनिट जो चीज बता रहा है उस रेशियो का है, वो रेशियो डिफाइन करेगा. दैट मीन्स दिस रेशियो इज नथिंग बट इट्स अ रेशियो ऑफ टाइम. टाइम फॉर व्हाट? पॉइंट ए से बी जाने के लिए जितना टाइम लगता है और पॉइंट बी से सी जाने के लिए जितना टाइम लगता है उसका रेशियो है. द मीनिंग इज ए टू बी अगर मुझे 4 घंटे लगते हैं तो बी टू सी मुझे 3 घंटे लगेंगे. दैट इज द मीनिंग. क्लियर एवरीवन? सो आई कैन Yes, sir. इजीली से रेशियो ऑफ स्पीड, सॉरी, एलिगेशन ऑफ स्पीड गिव्स द रेशियो ऑफ टाइम. यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसे पूछा, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर द यूनिट, देखो पर केजी. ये जो केजी है, ये केजी क्या देता है? क्वांटिटी बताता है, वेट बताता है. मैं कितना कितना वेट आई विल टेक, कितना क्वांटिटी आई विल टेक. क्लियर एवरीवन सो फार? Yes, Yes, sir. sir. ओके, वंडरफुल. सो वी विल ट्राई टू सॉल्व. कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है. एलिगेशन रूल को यूज करने के लिए मिक्सचर का वैल्यू दिया रहेगा. ठीक है, मिक्सचर का वैल्यू दिया रहेगा. तो अगर मिक्सचर का वैल्यू नहीं दिया है तो आप एलिगेशन रूल यूज नहीं कर सकते. वैसे कर सकते हैं बट वो बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा. ठीक है, घुमा फिरा के यही चीज आएगा. सो इफ मिक्सचर वैल्यू इज नॉट गिवन, use weighted average. If mixture value is given, use alligation rule. ठीक है? So let us try to identify with questions कि हमें इसको solve कैसे करना है. Okay? First question. In what ratio? कौन से रेशियो में मिक्स करना है? Okay, fine. एक चावल है जो इंफीरियर क्वालिटी का है जिसका प्राइस 15 रुपए. ओके, 15 रुपए वाला मिक्स करना है किसके साथ? शुड बी मिक्स्ड विद द राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी जिसका प्राइस 25 रुपए है. ओके, 15 रुपए हम लोगों ने मिक्स किया 25 वाले के साथ. सो दैट द सेलर विल गेन ₹2 आफ्टर सेलिंग द राइस फॉर ₹20 पर केजी. कोई मुझे बता सकता है क्या मिक्सचर का वैल्यू दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में? इज द मिक्सचर का वैल्यू गिवन? No, sir. यस और नो? इज इट नो? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. देखो, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है. यू हैव टू आइडेंटिफाई. 15 रुपए वाले को मिक्स कर दिया है 25 रुपए वाले के साथ और उसको बेचा है ना? He getting a 2 rupees profit when he sell a rice at 20 per kg. हाँ, Sweet, वो weighted कौन सा average. राइस बेच रहा है? मिक्सचर दोनों को ही मिक्स बेच रहा है. करके 20 पर केजी से बेच. हाँ, तो दैट मीन्स ये मिक्सचर का प्राइस है. दोनों मिक्स करके बेच रहा है. कितने में? 20 रुपए में. लेकिन ये जो प्राइस 2 रुपीज है ये प्रॉफिट है ना? गेन मतलब प्रॉफिट है. और ये 20 जो है वो सेलिंग प्राइस है. तो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकता, मुझे कॉस्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? ये सब कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, एलिगेशन में सब एक टाइप के होना चाहिए. जरा मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस 20 है, प्रॉफिट 2 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. इफ सेलिंग प्राइस इज 20, profit is ₹2, what will be the cost price? 18 10, rupees. sir. 18. 18. तो ये बन गया 18 रुपए. उन्होंने सीधी बात नहीं बोली है. सो दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू बाय राइटिंग ₹2. खत्म. इज द मिक्सचर गिवन नाउ? मिक्सचर दिया है तो आई कैन डेफिनेटली यूज द रूल ऑफ एलिगेशन. सो क्या करना है? A option 7 is. Yes, 7:3. Yes.
Okay, so try the next question. I will not be helping you out in this question. Tell me what shall I write or what shall I not write in the question. इस मेथड के जो स्ट्रक्चर है फिगर आउट करो. फाइंड द प्राइस. ओके, प्राइस पूछा है ऑफ टाइप ऑफ वेट रुपीज इतना. अच्छा, इस चीज को मिक्स करना है. इस चीज का क्वांटिटी दिया हुआ है. देखो Q1 का वैल्यू इज गिवन, Q2 का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, और इसको मिक्स करना है 18 रुपीज वाले के साथ, ताकि सेलर अर्न्स नथिंग. नथिंग मीन्स व्हाट? प्रॉफिट कितना है इसमें? When I say seller earns nothing, what is the profit? 0%. 0. Yes. A option 9 rupees. 9 rupees. Okay. तो ये क्या है? 15 रुपए. क्या है 15 रुपए पर किलो? Average weight. एवरेज. यस, दैट इज मिक्सचर वैल्यू. याद रखो, जब भी मिक्सचर दिया है मतलब हम लोग एलिगेशन रूट को यूज कर सकते हैं. अब दिक्कत ये है कि पहले वाले का तो प्राइस ही नहीं पता, सेकंड वाले का प्राइस फिर भी पता है. अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? द मिक्सचर इज 15. जब भी प्रॉफिट 0 होता है, सेलिंग प्राइस ही कॉस्ट प्राइस है ना. अब मुझे बताओ, पहले वाला 10 किलो लिया तो सेकंड वाला कितना किलो लेना पड़ेगा? 20. दैट मीन्स कितना रेशियो आना चाहिए? 1:2. 1:2. अब मुझे बताओ, हमारे यहाँ पे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है. अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 1:2 रेशियो चाहिए तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 6. परफेक्ट. अब मुझे ये बताओ, 15 रुपए जो है 18 से कम है, तो ये वाला कितना कम होना चाहिए? 21 होगा ये सर. नहीं, 20. देखो, पॉसिबिलिटी 21 भी है और 9 भी है ना, क्योंकि मुझे इन दोनों का डिफरेंस 6 लाना है. अगर मैं यहाँ पे 21 लिखूं, अगर मैं 9 भी सर हो सकता है. 9. हाँ, अगर मैं यहाँ पे 21 लिखूं तो डिफरेंस भी 6 आ रहा है. अगर मैं 9 लिखूं तो भी डिफरेंस 6 आ रहा है. लेकिन दोनों में से सही कौन सा है? The answer will be 9. 9 सर. क्यों? What is the reason behind writing 9 not 21? फॉर्मूले से भी 9 ही आ रहा है सर. हाँ, लेकिन उसका कुछ तो रीजन होगा, ऐसा क्यों आ रहा है? देखो, एवरीथिंग हैज अ रीजन. मैंने क्या बताया? 21 और 9 बोथ पॉसिबल है मैथमेटिकली, लेकिन 21 और 9 में से 9 इज द करेक्ट आंसर. द रीजन बीइंग, ये जो वैल्यू है ये क्या है? एक मिक्सचर वैल्यू है, और मिक्सचर इज नथिंग बट द एवरेज. एवरेज वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना. दूध और पानी मिक्स करोगे तो दूध का क्वालिटी बढ़ नहीं जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? इट विल लाई समवेयर बिटवीन दूध एंड पानी. सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 21 लिखूं, क्या 28 वाला और 18 रुपए वाला मिक्स करोगे तो 15 रुपए वाला बनेगा? 15, 18 और 21 के बीच में नहीं आता है. 15 doesn't lie between 18 and 21. That means our answer is 9. Have you understood the reason? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So देखो, whenever mixture value is given,
या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, or the ratio might be asked. Okay, so all you will get the answer from the rule of allegation itself. So try the next question. सबसे पहले सर्च करना है कि मिक्सचर का वैल्यू दिया है या नहीं. You should always ask, look for the mixture का वैल्यू. 20 लीटर दिए हैं सर. Yes, mixture का price is given. Remember, दूध और पानी के मिक्सचर में ना few things that you need to understand. अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो if profit is not given, let's say profit not given, क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात ही नहीं है, in that case selling price itself is the cost price. So solve it and let me know the answer. Is it done? No, sir. सर. Why it is taking so much time? अच्छा, one more thing you need to understand. जब भी water and milk आता है तो this condition needs to be followed, and also take the water का price as ₹0 always. So what you are mixing? It says water को मिल्क के साथ मिक्स करना है. So price, mixture का price is given which is 20 and pure milk का price is ₹25. Okay, water का price that we need to consider is 0. Now figure out, अभी solve करके देखो. Sir, is it 4? 4 सर. 4. Okay, so the ratio will be 5:20, मतलब 1:4. 4. और क्वेश्चन में देखो 1 लीटर पानी बोला है तो यहाँ पे लकीली रेशियो में भी 1 आया है, तो 1 लीटर वाटर के साथ you'll mix 4 liters. Milk. So try the next question. Gain. You have to be very careful. ये प्रॉफिट दिया है मतलब you will have to find the cost price first. आप सेलिंग प्राइस को यूज नहीं कर सकते, यूज कॉस्ट प्राइस. $90. 90. Okay,
I sometimes feel कि क्वेश्चन में कुछ तो इनकम्प्लीट है. One bottle of mixture of water and wine in the proportion 1:5 for rupees 100. Okay. What will be the cost price, by the way? 100. Cost price is 75. ऐसा क्यों? Because Gain 175 gain 25 rupees. हाँ, 100 रुपए. ये जो 100 रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर. तो मिक्सचर का प्राइस 100 रुपीज है. 100 रुपीज में बेचा है ना, और 25 रुपए का प्रॉफिट है. दैट मीन्स द मिक्सचर का प्राइस वुड बी 75. नाउ व्हाट टू डू? फाइंड द प्राइस ऑफ वन बॉटल ऑफ प्योर वाइन. तो मिक्सचर का प्राइस 75 है. आपने क्या क्या मिक्स किया है? वाटर एंड Fine. वाइन. तो पहला वाला वाटर है, दूसरा वाला वाइन है. तो दिस मिक्सचर प्राइस इज गिवन 75. वाटर का प्राइस तो गिवन नहीं है, तो व्हाट टू एज्यूम? 0. यस. अब एक साइड वाला डिफरेंस यू कैन इजीली फाइंड आउट. 0 एंड 75 डिफरेंस कितना आएगा? 75. 75. अब हमें रेशियो कितना चाहिए? 1:5. 1:5. तो अभी यहाँ पे कितना होगा? अगर दूसरा वाला 75 है तो यहाँ पे कितना होगा? मुझे फाइनल रेशियो 1:5 ही चाहिए. 15. 15. यस. ये 5 का 15 गुना है, ये भी 1 का 15 गुना होना चाहिए. नाउ टेल मी व्हाट शैल आई राइट हियर? इन दोनों का डिफरेंस 15 आना चाहिए, है ना. तो अगर मैं 60 लिखूं तो भी डिफरेंस 15 आ रहा है. अगर मैं 90 लिखूं तो भी डिफरेंस 15 आ रहा है. विच वन इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू? 90. 60. 90 इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू. क्यों? 90 lies 75. हाँ, करेक्ट. 75 लाइज बिटवीन 0 एंड 90. जो भी मिक्सचर का वैल्यू है ना, वो इन दोनों के बीच का वैल्यू होना चाहिए. अब 0 और 60 के बीच में 75 आता है क्या? आंसर इज नो. So that means this should be 90. This is the reason. Clear everyone? It is similar to the previous question. Yes, sir. Agreed everyone? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's move to the next question. Try these questions. $104 kg. 104. Okay. Uh, 104. Shailesh, please try again. 104 will it be? Yes, sir. Because here we are given N1, N2, and X1, X2.
Okay. Yes. I cannot use the rule of alligation. ऐसा क्यों? क्योंकि मिक्सचर की मिक्सचर वैल्यू नहीं थी। हाँ, तो मुझे पूछा भी मिक्सचर का ही वैल्यू है ना? फाइंड द प्राइस इन रुपीज पर केजी ऑफ द सीमेंट दैट द बिल्डर यूजेस शुड बी कंसिडर्ड फॉर कॉस्टिंग पर्पस। मतलब दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का वैल्यू कितना आएगा? सो आंसर इज 2 into 80 N1X1 plus 3 into 120 divided by 2 plus 3. तो आंसर इज 104। वैसे 80 से 120 कितना बढ़ गया है? 40। 40 into 3 will be 120. 120 सब में बटेगा, 24 बढ़ेगा। So answer is 80 plus 24. Okay, you can also solve like this. Otherwise ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं तो you can go with the weighted average. Yes, let's go for the next question. Now, यहाँ पे प्राइस है ही नहीं। 25% solution, 2 liters of water, quantity is given to 8 liters of alcohol. मतलब 2 लीटर और 8 लीटर मिक्स करोगे तो कितने रेशियो में मिक्स करना है? व्हाट इज द रेशियो? 1:4। 1:4। ओके, अब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे? 1:4 तो आना चाहिए, दैट इज ओके, बट यहाँ पे मैं क्या लिखूं? व्हाट आर द वैल्यूज दैट आई शुड राइट हियर? सो रिमेंबर, ये जो परसेंटेज है ना, this talks about the concentration. So concentration means what? 25% solution means अगर 100 ml का मिक्सचर है उसमें 25 जो है वो अल्कोहल मिलाया गया है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। इसको हम स्ट्रेंथ, मतलब क्या है? स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्ट्रेंथ, ये कॉन्सेंट्रेशन, ऑल दीज आर नथिंग बट टोटल मिक्सचर में से कितना वॉल्यूम अल्कोहल है, दैट इज द मीनिंग। ओके, सो रिमेंबर, कॉन्सेंट्रेशन में व्हेनेवर समथिंग इज प्योर इट इज 100% कॉन्सेंट्रेशन, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, मैंने सोचा 75% कॉन्सेंट्रेशन वाले मिल्क के साथ अगर मैंने वाटर ऐड कर दिया तो वाटर इज इन द प्योर फॉर्म, तो दिस इज 75%, आई विल बी हैविंग 100% हियर। ऑलवेज रिमेंबर, प्योर फॉर्म इज ऑलवेज 100%। ठीक है, तो मैंने क्या किया? प्योर वाटर ऐड किया है। देखो, 2 लीटर ऑफ वाटर, सो व्हेन आई एम एडिंग वाटर आई एम एडिंग 100% concentrated water with 25% alcohol solution. So 25%. Am I clear so far? Yes or no? यस सर। हाँ, तो now what is the strength now? मतलब मिक्सचर का वैल्यू बोला है, तो मिक्सचर का वैल्यू कैसे लिखें? मिक्सचर तो दिया ही नहीं है। If mixture का value is not given, what to do? Which formula to apply? एलिगेशन। एलिगेशन के लिए मिक्सचर का वैल्यू दिया रहना चाहिए। इस क्वेश्चन में मिक्सचर का वैल्यू ही हाँ, कौन सा फॉर्मूला? उस फॉर्मूले का नाम क्या है? Weighted average. वेटेड एवरेज। तो फॉर्मूला Q1 Q2 का वैल्यू इज गिवन विच इज 1:4। मतलब मैं 2 लीटर और 8 लीटर नहीं लिया तो भी चलता है, तो मैं 2 और 8 की जगह N1 और N2 का जो वैल्यू है आई विल टेक दिस एज 1:4। ठीक है, ओके,
Now when I say when I'm mixing two things, तो मैं सोचूंगा मैं पानी को पानी के साथ मिक्स करूंगा. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट, पानी को पानी के साथ मिक्स करूंगा. तो कैन आई राइट लाइक दिस, 2 लीटर पानी मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन एकदम 100% है. यानी यहाँ पे मैं 1 लिया तो भी चलता है. एंड इफ आई टेक 1 हियर आई शुड टेक 4 हियर, है ना, क्योंकि रेशो क्या है 1:4. कैन यू टेल मी इफ एल्कोहल, ये 25% किसका कॉन्सेंट्रेशन है? एल्कोहल का. हाँ, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 75. यस, कहाँ से मिला? 100 लीटर के मिक्सचर में 25 अल्कोहल है, बाकी बचे हुए क्या होंगे? फिर पानी ही होंगे, है ना. रिमेंबर, आपको पानी यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे भी पानी ही ऐड करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे अल्कोहल है तो यहाँ से अल्कोहल परसेंटेज ही ऐड करना पड़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो नाउ यू टेल मी, यहाँ पे क्या लिखूं? 1 + 4. नाउ यू टेल मी. सो ये क्या है? ये किसका कॉन्सेंट्रेशन हम मिक्स कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. रिमेंबर, मैं जो 75% लिया हूं दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल द वैल्यू फॉर दिस? एनीवन? 100 + 4 × 75. 160. 160 नहीं आएगा, कुछ और आएगा. एक बार फिर से चेक करो. 300. 300? 400 आएगा ना? यस सर, टोटल 400 आएगा. 4 × 75 300. 400 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आता है? 80. तो ये 80% जो है, 80% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर. तो अल्कोहल परसेंटेज कितना होगा? 20%. ठीक है. देखो, मैंने दूसरा कुछ यूज नहीं किया है, जो मुझे पता है मैंने वही यूज किया. ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वाले में थोड़ा देख के संभल के यूज करना है. हाँ, बिकॉज यहाँ पे अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आप पानी का वेटेड एवरेज निकाल रहे हो तो उसमें अल्कोहल नहीं लिख सकते. पानी के साथ पानी लिखो, अल्कोहल के साथ अल्कोहल लिखो. ठीक है. मिक्सिंग हमेशा सेम टाइप पे करना है, मतलब जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तब. नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, आपका पहला काम है मिक्सचर का वैल्यू आइडेंटिफाई करना. A option 3:2. 3:2. ओके, वेरी फास्ट. इन व्हाट प्रोपोर्शन, रेशियो पूछा है. अगर रेशियो पूछा है ना तो प्राइस दिया ही रहेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगर रेशियो पूछा है प्राइस विल बी गिवन. इफ प्राइस पूछा है रेशियो मस्ट बी गिवन. 3.2 इस बार पॉइंट में आ गया. मिक्स्ड विथ 2.9, मिक्सचर वर्थ ₹3.08. दैट मीन्स 3.2, दूसरा आ जाएगा 2.9, 3.08. इज इट करेक्ट? आई एम राइटिंग द एलिगेशन. इज इट करेक्ट? प्लीज वेरीफाई. Yes, sir, right. अब बोलोगे ये डेसिमल पॉइंट आता है ना तो इट कंफ्यूजेस अस अ लॉट. फिर क्या करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपली मल्टीप्लाई दिस एंटायर नंबर बाय 100. ये हो जाएगा 300. 3/2 आंसर इज करेक्ट. हाँ, देखो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ना मेरे पास से डेसिमल सारे हट गए हैं. तो 290 एंड 308, ये हो गया 18, ये हो गया 12. सो आंसर इज 3:2. ओके. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ मेनी केजी, मतलब क्वांटिटी पूछा है, ऑलवेज रिमेंबर क्वांटिटी पूछा है, क्वांटिटी पूछा है तो क्या दिया रहेगा, व्हाट शैल बी गिवन? Price given. हाँ, प्राइस मस्ट बी गिवन। देखो प्राइस सारे दिए हुए हैं। ₹5.2 वाला 4 के साथ मिक्स कर दिया गया, 15 किलो 73.2। आपको ना कुछ एक सिंपल सा चीज करना पड़ेगा बिफोर राइटिंग डाउन दिस वन। ये एलिगेशन रूल अप्लाई करने से पहले कुछ करना पड़ेगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट? $15 into 73. हाँ, मैंने क्या बोला, दैट दोनों अगर मिक्स करते हो तो मिक्सचर का जो प्राइस है वो दोनों के बीच में होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये 73.2 तो ये दोनों से भी बड़ा है, तो ये मिक्सचर का वैल्यू नहीं है तो मिक्सचर का, लेकिन यहाँ पे बिठाने लायक नहीं है। ऐसा क्यों? सर वो 15 kg मिक्सचर। हाँ, ये देखो, ये दोनों मिक्स करके ना टोटल क्वांटिटी 15 किलो है। अब 15 केजी का प्राइस जो है वो 73.2 है, लेकिन यहाँ पे तो 5.2 जो है ये क्या है, ये पर केजी, 1 केजी का प्राइस है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो 15 किलो का इट इज 73। मींस 15 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। यस एग्जैक्टली। तो मिक्सचर का प्राइस वुड बी 73.2 divided by 15. Solve it and let me know the answer. $4.88. 4.88. Yes. Is it with everyone 4.88? Yes, sir. यस सर। Okay. 4.88. अब डिफरेंस निकाल सकते हैं। नाउ आई कैन अप्लाई द रूल ऑफ एलिगेशन। पॉइंट आता है तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे ना 2 डिजिट्स हैं, सो इट विल बी एज गुड एज 520, 440, 488। सर वहाँ पे 0.48 एंड 0.32 आ गया, मींस 48 एंड 32 आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 100 से डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई। हाँ, सबको मल्टीप्लाई करो। हाँ, देखो पॉइंट को हटाने का एक ही तरीका है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। सो दिस विल बी 32 एंड 48। 32 एंड 40। ओके, तो रेशो कितना आएगा? 16 से डिवाइड होगा, देखो 3:2। 3:2। सो 3:2 का मतलब क्या है, ये 3 किलो लिया तो ये 2 किलो लेना पड़ेगा, तो टोटल कितना आएगा, 5 किलो, है ना। अगर टोटल ही 15 किलो का बनाना है तो 3 और 2 5 हो गए। अब मुझे 5 नहीं चाहिए, आई वांट 15 के। 9:6. 9 and 6, yes,
परफेक्ट। तो 9 किलो और 6 किलो लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे कौन सा किसका क्वांटिटी चाहिए? ये 5.2 वाला, राइट? तो 5.2 वाला विल बी द पहले वाला, दैट इज 9 kg वाला। अंडरस्टूड? So let's go to the next question. So next question is also again dealer mixes varieties of grains. Okay, फिर से मिक्सिंग का आ गया। तो पहले देखना पड़ेगा कि मिक्सचर का वैल्यू इज गिवन और नॉट। इज द मिक्सचर प्राइस गिवन? Yes, mixture. Yes, sir. Mixture price is given हाँ 16.5. लेकिन मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है वो, सेलिंग प्राइस 16.5, प्रॉफिट इज 10%। कैन यू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस? ये सब मिक्सचर के ही हैं, क्योंकि मिक्सचर का सेलिंग प्राइस आई कैन नॉट यूज इन द रूल ऑफ एलिगेशन। मुझे कॉस्ट प्राइस ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब ये जो 12 रुपए 30 रुपए ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस ही है। टेल मी, अगर 16.5 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 10% है। ये हम लोगों ने किया है, हाउ टू कैलकुलेट दी कॉस्ट प्राइस। 10% means 1.65 आएगा ना सर? 10% इसका नहीं लेंगे ना, फिर CP का 10%. प्रॉफिट 10% जो है किसके ऊपर अप्लाई होता है? CP पे. सीपी पे अप्लाई होता है। यस, मतलब अगर मैं 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, राइट? मतलब 10 रुपए खर्चा करोगे ना तो 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर हम कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? हाँ, इधर देखो, 10% मतलब 1/10 है, करेक्ट? मतलब अगर मैं 10 रुपए वाला सामान 1 रुपया प्रॉफिट के साथ बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा? 11 में, करेक्ट? क्योंकि मुझे 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मैं 16.5 में बेचूं तो ये कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 10 का 11 है तो कितने का 16.5 होना चाहिए? मींस प्लस 1.65 करना पड़ेगा। हाँ, मतलब हाँ, समथिंग प्लस देखो 16.5 क्या है एक्चुअली? ये सेलिंग प्राइस है। मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर ना 10% अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, 10% बढ़ाओगे, तब जाके सेलिंग प्राइस आएगा। अब या तो ऐसे भी सोचो, देखो सिंपल तरीका, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो 10%, 100 रुपए का सामान को कितने में बेचोगे बताओ? अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो 110। 110 में बेचोगे। हाँ, अगर 16.5 में बेचना है, ठीक है, तो खर्चा कितना करोगे फिर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना मिल रहा है? देखो 0 0 कैंसिल, 10 इंटू 16.5 यानी 165। 165/11 कितना हो गया? 165/11 15, यस, 15 इज द कॉस्ट प्राइस। जरा सोचो, 15 का 10% कितना होता है? 1.5। अब 1.5 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? 16.5। वेरीफाइड? ये समझ में आया? 5:1। सो ये 15 हो गया, ये 3 हो गया, रेशो कितना आया? 5:1। 5:1। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. हाँ, बस ये 10% एक्स्ट्रा जो है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसके ऊपर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है और कुछ नहीं।
So try the next question. आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं. A milk seller buys ₹6 a liter, and after adding water he sells it at ₹7.2. ये 7.2 जो है ये मिक्सचर के बाद है कि मिक्सचर के पहले है? मिक्सचर के बाद. After adding means mix. मतलब ये क्या है? Profit of ₹1.2. हाँ, ये एक्चुअली मिक्सचर है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है, इतने में बेच रहा है. अब प्रॉफिट 60% है, तो मतलब ये क्वेश्चन इसके सिमिलर है ना पहले वाले क्वेश्चन के साथ. हाँ सर. हाँ, तो वही ट्राई करो. 100 रुपए का सामान वो कितने में बेचेगा? 60% प्रॉफिट अगर रखोगे तो 160 में बेचेगा ना. तो अगर 7.2 में बेचना है तो खर्चा कितना करेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम टेक्निक है, कोई चेंजेस नहीं. 100 into 7.2 divided by 160. How much will it be? 4.5. 4.5. 4.5 तो हो जाएगा 72/16. 16 कितना टाइम जाएगा ये? 16 for the 64. 64. हाँ, तो 4.5 और 45. 4.5. 4.5. तो 6 रुपए वाला पानी के साथ ऐड किया हुआ है, तो पानी का प्राइस कितना लिखना है? हाउ मच विल इट बी? पानी का प्राइस कितना लेते हैं हम लोग? 0. 0. यस. हाँ, तो रेशियो विल बी 4.5:1.5. तो व्हाट इज द रेशियो? कितना रेशियो आया? 3:1. 3:1. 3:1. अच्छा, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर. अब मुझे बताओ 3:1 के रेशियो में बनाओगे तो मिक्सचर कितना, मिक्सचर का वॉल्यूम कितना आएगा? कितने लीटर वाला मिक्सचर है ये? 3:1 मतलब 4 लीटर का मिक्सचर है ना. 4 लीटर का मिक्सचर है, और इसमें वाटर कितने हैं? 3 लीटर. हाँ, 0 तो प्राइस है. 1. ये क्वांटिटी बताता है ना, क्वांटिटी या वॉल्यूम, ये तो प्राइस है. तो 4 लीटर के मिक्सचर में 1 लीटर वाटर है, मीन्स बाकी के 3 मिल्क है. सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज? 25%. यस, तो 25% वाटर है, मीन्स बाकी के 75% मिल्क है. ओके, सो आई हैव नॉट यूज्ड एनी अदर टेक्निक. जो हमने स्टार्टिंग में सीखा है वही है. ओके, सो इफ मिक्सचर इज गिवन, मिक्सचर गिवन है तो यूज एलिगेशन, एल्स वेटेड एवरेज. खत्म. मिक्सचर गिवन है, एलिगेशन यूज करो. मिक्सचर नहीं दिया है, यूज वेटेड एवरेज. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो टुमारो विल सी अनदर टाइप जहाँ पे ना मिक्सचर जो है धीरे धीरे चेंज होता है. ओके, सो ये कैसे होता है? दैट इज रिप्लेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. नया फॉर्मूला कुछ है नहीं, जो हमने पहले परसेंटेज में सीखा था वही यूज करेंगे. ओके, सो लेट मी क्विकली टेक योर अटेंडेंस.
Today is 3rd May. Okay. Please respond, everyone. Shajit Mani, Sejal. Present, sir. Sejal, you joined late. What happened? क्या हुआ? Sir, actually नेट का इशू था. Okay. Dipali, Present, sir. and Rohan Jadhav. Rohan, you there? Not responding. Okay. Poonam, not responding. Aparna, Present, sir. then Lakhan Rathore. Lakhan, you have not been responding today. कोई आंसर नहीं आया आज. What happened? Okay. Chalice is present. Okay. Pranay present. Abhishek Patil is there? Abhishek? Okay, Abhishek is not responding. Then Mudassir is there. Divya is there, no? Divya Pawar? Divya not responding. Present, sir. Divya, you there? Yes, sir. Oh. Upendra is there. Vishal Jadhav, you're there, no? Vishal Jadhav? Yes, Pranay, updated. Vishal Jadhav not responding. Anil is present.